Start with class 6th science chapter 1 food components or components of food. So have you remember we have studied about it a little bit in the previous chapter also, which was food, where does it come from? If we listen the word food, our mind suddenly imagines the food items just like pizza, burger, muffins, donuts, cupcakes, and so on like that. But if we talk about the components of food, our mind reminds us about the macronutrients, just like proteins, vitamins, fats, carbohydrates, and lots more, many more macronutrients like that. We have also studied it earlier, but now we are going to take a brief look on it. As we all know, हम जो भी खाना खाते हैं वो एक, दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना होता है, और वो इंग्रेडिएंट्स हमें जनरली प्लांट्स या फिर एनिमल्स से मिलते हैं, और इन इंग्रेडिएंट्स में हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, और वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स. And in addition, food contains dietary fibers also because it's needed for our body. Of course, needed नहीं होते तो फिर present क्यों होते food में? But the thing is, do all food contains all these nutrients? Or how can we know that our food contain these nutrients or not? So to find this out, we have to take some tests. We have to take some tests as an activity. Here, we have to take one activity. We have to just perform an activity as a table. We have to make a table. We have to choose some regions or particular states for this, and we have to find out the common meals of those states. And then, just like I have taken here Punjab, their common meal is makke ki roti, sarson da saag, rajma, curd, ghee. So the makka roti is grain, rajma is dal item, sarson ka saag is a vegetable item, and others make curd and ghee. Similarly, in Andhra Pradesh, rice is grain item, tur dal or rasam is dal item, kundru is a vegetable, and others may it contains buttermilk, ghee and pickle. So you have to make a table like this, and you have to add more states, more regions and their meals, and you have to comment me also. So we were talking about test ना, हम टेस्ट की बात कर रहे थे कि हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं है. तो दे आर वेरी सिंपल टेस्ट here we use very simple methods of testing. We can use cooked food or raw materials, whatever we can use. Here first of all we will perform the test for carbohydrate, proteins and fats. For these tests, to conduct all these tests, we need some items like test tubes, dropper, solution of iodine, copper sulfate and caustic soda. And a very important note is, try these tests carefully and in the presence of your teacher or someone adult. And do not try to taste these chemicals. Do not try to drink these chemicals because these will be definitely harmful for you. And if you not got these chemicals as ready-made, then you can use this method which I have mentioned here to make these chemicals. So first of all we will conduct the presence of carbohydrate in food. ठीक है, तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं देयर आर मेनी टाइप्स. तो हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, शुगर या फिर स्टार्च के फॉर्म में. और जो सो वी कैन ईजिली टेस्ट वेदर द फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट और नॉट. So you have to take some food item or some raw material, put 2 to 3 drops of iodine solution on it. If the starch is present in the food material, then the iodine turns blue-black in color.
It simply indicates that the food material contains the carbohydrate. Now, here we have activity number 3, test for protein. To perform this activity, you just need to take a small quantity of food item for testing. If the food you want to test is solid, then first of all you need to make a paste or powder of it by smashing it. Grind or mash the small quantity of food, put some food into the clean test tube, add some drops of water to it and shake it well. Now using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate, 10 drops of solution of caustic soda. Shake well and let the test tube stand for a few minutes. अब यहाँ पे हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि यहाँ पे एक लड़का है जो कि ये टेस्ट परफॉर्म कर रहा है. यहाँ पे 2 बॉटल्स हैं जिसमें एक में कास्टिक सोडा और दूसरे में कॉपर सल्फेट रखा हुआ है. अब यहाँ पे कुछ चेंज ऑब्ज़र्व करना है जो हमारे टेस्ट ट्यूब में रखे हुए मटेरियल में आएगा. इफ़ द कलर ऑफ फूड टर्न्स वायलेट देन इट इंडिकेट्स दैट द फूड कंटेन्स प्रोटीन. अगर हमारे जो फूड का कलर है वो वायलेट हो जाएगा तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है. Now, activity 4, which is the test for fats. Fats. Now take some food item, wrap it in a paper, crush it, but take care that the paper does not tear or got damaged from anywhere. Now straighten the paper and put it in front of light. Now you have to make some observations. You need to observe the paper contains an oil patch, which shows that the food contains fat. Here the same I have shown you in the picture. यहाँ पर एक पेपर है जिस पर हमने थोड़ा सा फूड आइटम रखा है एंड उसके बाद में उसे पेपर को अच्छे से प्रेस करने के बाद, फूड आइटम को हटाने के बाद में हमने उस पेपर को लाइट के सामने रखा है तो हमें वहाँ पर कुछ ऑयल का पैच दिखाई दे रहा है. बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ समथिंग. जैसे कि हमें पता है कि कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिसमें वाटर भी होता है. दैट्स वाई हमें सबसे पहले फूड आइटम को पेपर पे रब करने के बाद में पेपर को ड्राई होने के लिए रखना है. व्हेन इट ड्राइज कम्प्लीटली देन यू कैन ईजिली सी द पैच ऑफ ऑयल ऑन द पेपर. शायद बहुत से लोगों ने ये ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी हमारा जो है कुछ ऑयल या फिर कुछ भी फूड आइटम जैसे हम स्कूल बैग में रख कर जाते हैं लेकर, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी लंच बॉक्स हमारी बुक्स के कांटेक्ट में आता है तो उसमें से थोड़ा सा ऑयल गिर जाता है हमारी बुक्स पे. तो ये हम उस पर भी ईज़िली देख सकते हैं. Now our next topic is, what do various nutrients do for our body? Number 1, carbohydrate. Number 1, it mainly provide energy to our body. Carbohydrate हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. It also provides flavor and sweeteners to our food. जिन भी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा वो चीज़ें यूजुअली मीठी होंगी. जस्ट लाइक पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट होता है एंड पोटैटो जो है इट्स अ स्वीट. डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज. रफेज का मतलब बेसिकली ये होता है कि हमारी बॉडी में जितना भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसे ईज़िली हमारी बॉडी से रिमूव कर देना. तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में डाइटरी फाइबर्स की तरह भी वर्क करते हैं. Now, fats. Fats also gives us energy, but fats give us more energy than compared to the same amount of carbohydrates.
फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में फ़ैट्स हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं। लाइक अगर 10 ग्राम हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है और 10 ग्राम हमने फ़ैट लिया है, तो 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जितनी एनर्जी मिलेगी उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हमें 10 ग्राम फ़ैट से मिलेगी। तो फ़ैट्स हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं और इसीलिए वो कभी कभी ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी में डिपॉज़िट्स क्रिएट कर देते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में डिपॉज़िट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, हमें थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सब हमें फ़ैट्स की वजह से ही होता है। हमारे नाउ प्रोटीन। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी के रिपेयर के लिए, हमारी बॉडी में कुछ भी डैमेज होता है तो उसके रिपेयर के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन आर ऑल्सो बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जिन फूड्स में प्रोटीन पाया जाता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, यानी कि जिम जाते हैं, उन्हें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए वो लोग रिच प्रोटीन वाले फूड लेते हैं, गुड प्रोटीन वाले फूड लेते हैं, जस्ट लाइक चिकन, एग, ब्रोकली, नट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड आजकल तो मार्केट में प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रोटीन ड्रिंक लोग पीते हैं, प्रोटीन शेक्स वगैरह पीते हैं अपनी बॉडी को जल्दी से हेल्दी बनाने के लिए। नेक्स्ट इज़ विटामिन्स। So vitamins helps our body protecting against disease. विटामिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, हमें बीमार होने से बचाते हैं। दैट मीन्स कि वो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रखते हैं। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर टीथ, गम्स एंड बोन्स हेल्दी। विटामिन्स हमारे जो टीथ होते हैं, गम्स होते हैं, बोन्स होती है, उन सबको हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं, उन सबको फिट रखने में हेल्प करते हैं, उन सबको प्रॉपर्ली फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। Vitamins are of various kinds like vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B6, vitamin B12। ये जितने भी कैटेगरी हैं विटामिन बी की, इन्हें हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। So these both vitamins, which are vitamin B6 and B12, are also known as vitamin B complex. Now comes to vitamin A. Vitamin A protects your eyes from night blindness and age-related decline. हमारी बॉडी में जो लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है और एज के साथ साथ हमारी आइज़ जो है वीक होने लगती हैं, उन सबसे प्रोटेक्ट करता है। सपोर्ट्स अ हेल्दी इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम विटामिन ए से बहुत अच्छा रहता है। इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्ने। एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है जो लोगों को, विच इज़ लाइक सबको पता होगा कि हाँ फेस पे काफ़ी सारे पिंपल्स निकल आते हैं, दाने वगैरह निकल आते हैं रेड कलर के, तो उससे कम करता है। सपोर्ट्स बोन हेल्थ। हमारी बोन्स को भी अच्छा रखता है विटामिन ए। एंड ऑल्सो इट प्रमोट्स अ हेल्दी ग्रोथ। ये हमारे लिए हेल्दी ग्रोथ के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। इनफैक्ट सारे विटामिन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं, हमारी होल ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। Here we have some sources of vitamin A. Sources of vitamin A just like carrots, papaya, meat, eggs and cheese, sweet potato, mangoes, fish, broccoli, squash, apricots, peaches, melon, avocado, peppers. विटामिन बी प्रमोट्स सेल हेल्थ, यानी कि हमारी सेल्स को अच्छा रखता है, नरिश रखता है। इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ आरबीसी। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स को की ग्रोथ को प्रमोट करता है। सपोर्ट्स एनर्जी लेवल।
It supports energy level, it supports good eyesight, it promotes a healthy brain function, it promotes good digestion, and also it promotes healthy appetite. It promotes proper nerve function also. विटामिन बी के प्रॉपर इंटेक से हमें नर्व फंक्शन हमारा अच्छा रहता है. Here we have some sources of vitamin B, which are oats, spinach, nuts, soya milk, eggs and dairy products, beans, fish, chicken, beef liver, etc. Here vitamin C. Vitamin C is also known as ascorbic acid, जो अधिकतर हमें खट्टी चीज़ों में पाया जाता है. It is necessary for the growth, development and the repair of all body tissues. हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ होते हैं उनके रिपेयर के लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. हेल्प्स प्रिवेंट आयरन डिफिशियंसी, इससे हमें आयरन की कमी नहीं होती है. बूस्ट इम्यूनिटी, प्रोटेक्ट्स योर मेमोरी एंड थिंकिंग एज योर एज गोज़ हायर. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे वो हमारी मेमोरी और हमारी थिंकिंग को भी प्रोटेक्ट करता है. हमारी मेमोरी जो है वो लूज़ नहीं होती है, ख़राब नहीं होती है. Here we have some sources of vitamin C, which are yellow bell pepper, etc. Vitamin D. It promotes healthy bones and teeth. विटामिन डी के सफिशिएंट इंटेक से हमारी बोन्स अच्छी रहती हैं, हमारे टीथ अच्छे रहते हैं, क्योंकि हमारे जो टीथ होते हैं वो भी एक तरह से हमारी बोन्स ही होते हैं. सपोर्ट्स इम्यून, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम हेल्थ. ये हमारे इम्यून सिस्टम की, ब्रेन की और नर्वस सिस्टम की हेल्थ को भी काफ़ी अच्छा रखता है. इट रेगुलेट्स इंसुलिन लेवल एंड सपोर्ट्स डायबिटिक मैनेजमेंट. ये हमारा इंसुलिन लेवल अच्छा रखता है, और हमारा इंसुलिन लेवल रेगुलेट रहेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा डायबिटीज़ भी जो है वो लेवल पे रहेगा. Here we have some sources of vitamin D. The body itself makes vitamin D when it exposed to the sun. जब भी हम धूप में जाते हैं तो हमें विटामिन डी, हमारी बॉडी जो है वो विटामिन डी बनाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि कहते नहीं है कि विटामिन डी सन से हमें विटामिन डी मिलता है, तो वो इसलिए क्योंकि सन के एक्सपोजर में जैसे ही हमारी बॉडी आती है वैसे ही हमारी बॉडी विटामिन डी फॉर्म करना स्टार्ट कर देती है. Now it comes to vitamin E. Vitamin E helps in maintain healthy face and eyes and strengthens the body's natural defense against illness and infection. हमारा फेस हेल्थ और बॉडी जो और हेयर्स और आइज़, ये सब कुछ विटामिन डी से बहुत अच्छा रहता है. विटामिन ई से. विटामिन ई की आप लोगों ने देखा होगा कैप्सूल्स भी आती हैं जो लोग अक्सर अपने फेस पैक में, हेयर ऑयल में या फिर आई ड्रॉप्स में मिला के यूज़ करते हैं, और लोग खाते भी, क्योंकि इससे हमारी जो सेल्स हैं वो नरिश्ड रहती हैं. Here we have some sources of vitamin E, which are hazelnuts, sunflower seeds, etc. Here it comes to vitamin K. Vitamin K helps to make various proteins that are needed for blood clotting and building of bones. हमारी bones की building, bones formation के लिए, और जैसे जब भी हमारे कहीं पे कट लग जाता है तो वहाँ थोड़े टाइम ब्लड गिरने के बाद में, कुछ टाइम के बाद ब्लड गिरना बंद हो जाता है, यानी कि हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है वहाँ पे, तो उसमें विटामिन के हेल्प करता है. हियर वी कम्स टू सम सोर्सेज ऑफ विटामिन के, विच आर कीवी, लाइम, ग्रीन पेयर्स, एंटीचोक्स, ब्रोकली रेब, ब्रोकली, एस्पैरागस, एवोकाडो, ग्रीन एप्पल, ग्रीन ग्रेप्स, हनीड्यू मेलन, celery, cucumber, Belgian endive, kale, etc.